So I welcome you all here in this first session. I know that you all are from three Zooms, Zoom Zoom Ramban, Zoom Batok and Zoom Gool. Those who are from Zoom Gool will raise their hands, please. Okay. Those who are from Zoom Batok and Zoom Ramban. Okay. Thank you. So today, first of all, we would like to talk about preschool education, pre-primary education, in a very brief way. क्योंकि बाद में हमारे पास शायद टाइम नहीं बचेगा कि हम दूसरे कंपोनेंट्स पे भी बात करें, लेकिन सबसे पहले हम ब्रीफली आप सबके सामने प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्री स्कूल एजुकेशन होता क्या है, उसके बाद इसका विजन क्या है, उसके बाद इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद इसके गोल्स क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट पॉलिसी का जो एक मैसेज है वो क्या है, एंड देन हम बात करेंगे एनईपी का जो विजन है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम डोमेन्स के ऊपर चले जाएंगे। तो आई होप कि यू ऑल विल कोऑपरेट हियर इन द मीन टाइम ऑफ दिस सेशन। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट प्री स्कूल एजुकेशन, as you all know that preschool education is also known as pre-primary education, which is imparted to children in the age group of 3 to 6 years. This is the definition of preschool education. Now, where it is being given, preschool education is imparted in any of the schools, whether it is Anganwadi school, whether it is pre-nursery school, whether it is Bal Vatika school, whether it is play school, whether it is pre-primary school, located in government and private schools. Now we will move towards the vision of preschool education. Preschool education's vision is to promote equitable, universal, joyful and inclusive, contextualized learning opportunities for ensuring the holistic development of a child in the age group of 3 to 6 years. This is the vision of preschool education. Now, we will move towards aims and objectives of preschool education. So, first aim of preschool education is, the second aim of this preschool education is preparing a child for school. Now there are some kinds of objectives in it. First one is to ensure that every child in a school feels safe and being valued. The second aim is to enable sound foundation for good health and well-being. The third aim is to enable children to become effective communicators. And the fourth aim is to help children to be creative, to be innovative, to be critical thinker, as well as to connect with their immediate environment. About the vision of Nipun Bharat. Vision of Nipun Bharat says, the policy of Nipun Bharat says that our first and foremost, priority is to achieve universal foundational literacy and numeracy by the end of grade 3 by 2026 to 2027. This is the vision of Nipun Bharat. Now, if we talk about the three basic goals of this policy, there are three basic goals. First one is children maintain good health and well-being. Second goal is maintain good health and well-being. हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, हम बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है।
यहाँ हमारे पास 3 साल के तो बच्चे आते हैं, हमने उनके बारे में टेक केयर करनी है और उनके एजुकेशन का खास ख्याल रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट गोल एंड द सेकंड गोल इज टू बिकम इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट। तो इन्वॉल्व लर्नर वो कैसे हो सकता है? इन्वॉल्व लर्नर वो जब तक हम उसको इन्वॉल्व करेंगे किसी एक्टिविटी में, जब तक हम उसके साथ शाना बशाना साथ नहीं देंगे, खड़े नहीं होंगे, तब तक वो इन्वॉल्व लर्नर नहीं हो सकते। और द थर्ड वन वाज टू बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। आपने देखा होगा आजकल भी तरह तरह की परेशानी आती है कम्युनिकेशन के लिहाज से। हम जहां भी जाते हैं, बच्चा जो है 10 या 15 या 20 लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही उस कंपोनेंट पे काम नहीं करते हैं। अब अगर हम उस कंपोनेंट पे स्टार्टिंग से ही काम करें तो आगे आने वाले समय में यही बच्चा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनता है और फिर यही बच्चा ह्यूमन रिसोर्स बन के एक कंट्री की, अपनी स्टेट की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपनी पंचायत की रहनुमाई करता। लेकिन अब ये टीचर के जहन में होना चाहिए कि हम बच्चे की इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करें और उसके लिए कौन से स्किल्स अप्लाई किए जाएं, कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाएं, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जाएं, ताकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है, हमारे अंदर जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज भी हैं, हमारे पास स्किल्स भी हैं, हमारे पास नॉलेज हर तरह की है, हर किस्म की है, लेकिन अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं, मेरे पास अगर इस पर 4 लफ्ज हैं, 4 अल्फाज हैं, अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, इट मींस वो मेरे तक ही महदूद है, आप तक मैं उनको नहीं ला सकता। हाँ, अगर मुझमें कम्युनिकेशन मैं इफेक्टिव अगर कम्युनिकेटर हूँ तो जरूर मैं 10 में से 4 बातें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश। तो ये 3 गोल्स थे। एक आ गया फर्स्ट वन, इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इन्वॉल्व लर्नर चाइल्ड को बनाना है, एंड देन हेल्थ एंड एजुकेशन उसकी थी। उसके बाद अब अगर हम आगे बात करेंगे कि विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, द विजन ऑफ NEP 2020 is to instill among learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thoughts but also in intellect, spirit, deeds, as well as to develop skills, knowledge, values, and dispositions. This is the vision of NEP 2020. ये मैं आप सबके सामने जो है, खैर आप सब जो है इसके गो थ्रू गए होंगे, नो डाउट, लेकिन एक रिफ्रेशमेंट होती है। यहाँ हम आपके सामने जो है वो लेक्चर मारने नहीं आए हैं, एक हिसाब से तो मार रहे हैं, लेकिन आइडियाज अपने शेयर करने आए हैं। बस आपके आइडियाज हम लेंगे, आप हमारे आइडियाज लेंगे, तो बात बनेगी। तो इसके अलावा जब हम NEP 2020 की बात करेंगे तो हम सबको जो है ये पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब फॉर्मुलेट की गई। तो वॉलंटरली कोई मुझे बता सकता है कि when was first education policy of India got formulated? Anyone? Exactly 1968 में जो है पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, एंड देन सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986. Then it got modified to some extent in 1992. 92 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। वक्त के साथ साथ जो हर चीज बदलती है। उसके बाद आफ्टर द गैप ऑफ मोर देन 34 years वी हैव NEP 2020, और इसमें इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, सब तरह की चीजों को चेंज कर दिया है, और इतना आसान बना दिया है, इतना आसान बना दिया है, कोई कहने की बात। आज इंसान को महसूस होता है कि काश अगर हम लोग आज बच्चे होते और इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर हम पढ़ते
तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही सुंदर होता। लेकिन वक्त गुजर गया है, अब हम वापस नहीं जा सकते। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर्मड ए कमेटी in 2017 which was headed by Dr. K. Kasturirangan for preparing the national education policy. The committee submitted its report on May 31, 2019. On July 29, 2020, Union Cabinet approved it. इस डेट पे जो है ये अप्रूव की गई थी और इसमें जो है more than over 2 lakh suggestions were received in favor and against the policy. कुछ फेवर में भी आए, कुछ अगेंस्ट भी चले गए सजेशंस, ठीक। एंड देन हम चलते हैं इस, ये आ गया। पहले क्या होता था, 10+2 होता था। 10 साल 6 से बाद 6 साल का बच्चा होता था तो स्कूल में आता था। एंड देन वो आगे जाते जाते तो 10वीं पास करता था तो हो गया वो 16 साल का, 16 साल का बन जाता था। एंड देन जब वो 12th पास करता था तो वो 18 साल का। लेकिन इन्होंने अब 3 साल इसको पहले ही दिए बच्चे को। क्यों दिए? एक बहुत बड़ा रीजन है, यूसीसी कहती है कि रिसर्चर्स फ्रॉम न्यूरोसाइंस से ओवर 85% ऑफ इट, इसीलिए जो है इसको 3 साल दिए गए फर्स्ट से पहले। अब इस 3 साल में हमने जितना ख्याल हो सके बच्चे का रखना है, और किस तरह से हम इस बच्चे के साथ पेश आएंगे हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद इसके बाद वाला जो स्टेज आता है वो आता है हमारे पास 3। अब ये 3 इयर्स जो है ये 6, 7 से स्टार्ट होंगे, उससे नीचे स्टार्ट होंगे। ये स्टार्ट होंगे 3वीं, 4थी और 5वीं। 3वीं, 4थी और 5वीं वाले बच्चे जो है वो इसमें एज में आ जाएंगे। और इस पहली वाली एज में जो है, जो मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस की, 3 इयर्स प्री स्कूलिंग, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड में जब 2 साल वो गुजारेगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा बच्चे का, एग्जाम फ्री होगा। तो आगे भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अब जब ये इस 3 साल के कैटेगरी में आ जाता है, 3वीं, 4थी और 5वीं में, वहां हम इसको थोड़ा थोड़ा हमने एग्जाम के बारे में बताने की कोशिश करनी कि एग्जाम एक्चुअली होता क्या। फाउंडेशन स्टेज 5 इयर्स जो होती है, इसमें प्री स्कूल पीरियड 3 साल का होता है। 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग होती है। एज ग्रुप इसमें क्या होता है, 4, 5 एंड 6 इयर्स। उसके बाद टू बी एनरोल्ड इन प्लेवे स्कूल्स और इन आंगनवाड़ीज और बाल टीचर्स। इसमें जो है नो एग्जाम एट दिस स्टेज, नो यूनिफॉर्म कोड। और नेक्स्ट जो इसके 2 साल होते हैं, इसमें जो है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड होती है, और एज ग्रुप इनका होता है 7 साल का बच्चा होगा और 8 साल का होगा। 8 साल का दूसरी में होगा और 7 साल का पहली में। नो एग्जाम एट दिस एज, इस एज में भी जब बच्चा पहली में होगा, दूसरी में होगा, तो एग्जाम का कोई कोड, कोई फोबिया नहीं होगा। नो यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म कोड भी नहीं होगा। मीन्स की यूनिफॉर्म कोड मीन्स की उनको यूनिफॉर्म के बारे में हमें कंसेप्ट नहीं देने, आप लाओ नहीं लाओ यूनिफॉर्म उन तक। क्योंकि इस एज के बच्चे जो होते हैं वो कभी स्केचिंग करेंगे, स्क्रिबलिंग करेंगे, डूडलिंग करेंगे, अपने हिसाब से पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे। तो इसमें जो है इनको वर्दी के बारे में कोई खास नहीं देना। ठीक। प्रेपरेटरी स्टेज अब 3 साल की आ जाती है। मैं थोड़ा ऊपर से बताऊंगा क्योंकि जो मेरा असली टॉपिक है डेवलपमेंटल डोमेन्स ऑफ ए चाइल्ड, वो कहीं स्किप ना हो जाए। उस पर हम 1-2 एक्टिविटीज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है प्रेपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का जो होता है, ये इसके बाद 5 प्लस अब 3 इयर्स का होगा, तो वो ये वाला है। अब इसमें जो है मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि स्टार्ट ऑफ एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एज ग्रुप इसमें 9, 10 एंड 11 इयर्स का होता है। क्लास इसमें 3rd, 4th और 5th की होती है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होती है। वो पहले वाला जो सिस्टम था, थ्योरेटिकल अप्लाई की जाती थी और ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब वो दूर तक नहीं रहा है और नहीं रखना है। हम हो सके अगर कहीं वो आज भी चलता हो उसको हमने इरेज करके
नया जो मेथड है उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वो एक फॉर्मूला है मैथ में, इसको स्किप कर गए, या फिर कोई और एक्टिविटी भी है, अगर हम उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल हमें नाउन के टाइप्स बच्चे के सामने रखने हैं, नाउन के टाइप्स रखने हैं, तो मैंने जैसे पढ़ा है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज रिजॉर्ट इट सेल्फ स्टडी थ्रूआउट माय लाइफ, तो मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे वो भूल जाते थे। हालांकि भूल इसलिए जाते थे कि मैं प्रैक्टिकली उन पे काम नहीं कर पाता था और नहीं हो पाता था। लेकिन जब गो थ्रू किया मैंने एक बुक का, उसके बाद जब मैंने वो एक्टिविटी बनाई और उसी एक्टिविटी को एज टीचर फिर दूसरे टीचर्स के साथ जो है मैंने शेयर की, तो आज फिर मुझे वो याद है और कभी अब भूलने वाली स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है जो अभी भी चल रहा है, अभी इसको चेंज कंप्लीटली नहीं किया है, और ये जो है न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर, इसको अब आने वाले समय में जो है अप्लाई 100% किया जाएगा। इसमें क्या है, तो ये मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर अब क्या कर दिया गया है, 10+2 सिस्टम हैज बीन ड्रॉप। जो 10+2 का सिस्टम है वो अब ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों ड्रॉप कर दिया गया है, इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 10+2 हैज बीन चेंज टू 5+3+3+4 सिस्टम ऑफ स्कूल। इस बात को जो है अगर हम आज के बाद स्कूल में जाएंगे तो जरूर हमें ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि 5+3+3+4 की चीज एक्चुअली है क्या। 5+ में कौन से बच्चे आएंगे, किस ईयर से स्टार्ट होगा, किस एज से स्टार्ट होगा, 3+ कौन सी एज होगी, कौन सी क्लासेस होंगी, और उसके बाद और 3+ एंड देन 4+, ये कौन से बच्चे होंगे और किस एज में ये फॉलो करेंगे। 5+3+3+4 पैटर्न विल बी फॉलोड एज दिस। फाउंडेशनल स्टेज, सबसे पहले हमारे पास आएगी फाउंडेशनल स्टेज। ये फाउंडेशनल स्टेज होती क्या है और उसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे। इसमें से हमारे पास बच्चा आता है 3 साल का एंड अबव, 3 साल का आता है या फिर उससे ऊपर। इसको बाल वाटिका भी कहते हैं, कंफ्यूजन रहती है, मैं इसको पहले ही क्लियर कर दूं। इसको बाल वाटिका भी कहते हैं, प्री नर्सरी भी कहते हैं कहीं कहीं, अच्छा नर्सरी क्लासेस भी कहते हैं, किंडरगार्टन अब आया ही आया है, प्री स्कूल भी कहते हैं, कहीं कहीं PS1 प्री स्कूल को शॉर्ट में बोलते हैं, PS1 PS2, तो कुछ और भी बोलते हैं, और कहीं कहीं जो है अब न्यू ट्रेंड आया है, मैं ट्रेंड ही बोलूंगा कि इसको प्ले स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ले स्कूल बोलते हैं। इसलिए प्ले स्कूल बोलते हैं कि ये वाले जो बच्चे होते हैं इनको जहन में ये भी डालना है कि आप हमारे पास पढ़ने आते हैं और हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे सीखेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ये जब हमारे पास आते हैं ये सिर्फ खेलने आते हैं, जैसे अपने माँ बाप के पास खेलते हैं, अपने भाई बहनों के पास घर में खेलते हैं, उसी तरीके से जो है ये टीचर के तरफ आएंगे और सिर्फ खेलेंगे बस। खेल में ही फिर इनको सारा कुछ सिखाना है, चाहे आप न्यूमरेसी सिखाएं, चाहे आप लिटरेसी पे बात करें, चाहे आप इनकी वो टेक केयर एंड एजुकेशन पे बात करें, लेकिन खेल में ही जो है हम सब ने इनके साथ पेश आना है टिल सेकंड क्लास तक। उससे ऊपर भी खेल में ही पेश आना है, लेकिन उससे ऊपर जो है बच्चा थोड़ा ग्रोथ कर जाता है एंड देन थोड़ी लेवल भी चेंज हो जाती है, और फिर आइडियाज कंसेप्ट जो टीचर इस बच्चे के साथ शेयर करता है वो भी चेंज होते जाते हैं। तो खैर ये आ गया 3 इयर्स प्री स्कूल की है, पिक्चर्स के थ्रू जो है डिमॉन्स्ट्रेशन की है, तो मेरे जहन से अब निकलती नहीं। इस वक्त बड़े चेहरे हैं मेरे सामने, तकरीबन 50 के करीब। मैंने इन चेहरों को जो है 5-6 चेहरे जो है फैमिलियर हैं, इसके अलावा मैंने किसी को देखा नहीं है, तो शायद ना आपने देखा हो। लेकिन आज जब मैं यहां से निकल जाऊंगा तो मुझे जरूर, अगर नाम आपके याद नहीं रहेंगे लेकिन चेहरे आपके याद रहेंगे। नाम मुझे कब याद रहेंगे? जब हम दोबारा दूसरी बार मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, चौथी बार मिलेंगे, तो मुझे आपके नाम वगैरह फिर अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी शक्लें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। इसी को कहते हैं पिक्चर बेस्ड लर्निंग।
बच्चे के सामने जब हम पिक्चर बेस्ड लर्निंग रखेंगे तो पिक्चर जो है बच्चे के माइंड में एकदम से आ जाती है। वो लिखा हुआ क्या है, इफेक्ट कहाँ है, स्पीड कहाँ है, साउंड कहाँ है, ये बच्चे के जहन में अभी नहीं आएगा। और ये है भी स्टेज बहुत छोटी, लेवल बहुत छोटे है, बच्चे छोटे हैं, इनके जहन में कहाँ आ सकता है। जब वक्त गुजरता जाता है फिर ये सब चीजें जो है ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें स्किल्स के हिसाब से चलना है, अकॉर्डिंग टू यानी कि अगर हम काम करेंगे बच्चे के ऊपर तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आएगा और आने वाले समय में हमें भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये फाउंडेशनल स्टेज के प्रेपरेटरी स्टेज के बारे में था। अब जो है मिडिल स्टेज 3 इयर्स का हो जाता है। वो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर रखा है इसका 5+3+3। अब 3 आ गए, क्लासेस 6, 7, 8 होती है। एज ग्रुप इसका 12, 13 एंड 14 इयर्स होता है। कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है, कोडिंग वगैरह, इसमें वोकेशनल नॉलेज भी दी जाती है। अब इसमें एनईपी क्या कहती है? इसमें एनईपी कहती है कि अब इस एज में बच्चा जो है अपने ख्याल को एक्सप्रेस अच्छे से करना स्टार्ट कर जाता है। अब वोकेशनल वो कर सकती है, अगर कुछ और वो क्रिएट करना चाहती है, इनोवेशन करना चाहती है, वो कर सकती है। कोई लड़के में से कोई कुछ और मैसन बन सकता है या फिर कुछ ऐसा कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो मैसन मिस्त्री बने, कुछ और भी मतलब उसकी क्रिएशन हो। और आज की डेट में ये एनईपी कहती है कि जरूरी नहीं कि हर एक बंदा जो है एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉय बनता भी नहीं। तो जहां भी उनका क्या कहते हैं इंटरेस्ट है और उनके इंटरेस्ट में ही चलना है और उसी फील्ड में जो है उनका वो कवर करना है। उसके बाद जो है सेकेंडरी एज आ जाती है, सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स का होता है। ये 5+3+3+4। इसमें क्लासेस 9, 10, 11 एंड 12 होती हैं। और इसमें एक बड़ी चीज जो है, बड़ी चेंजिंग आ चुकी है, दैट इज एज ग्रुप जो है इसमें ये होता है तो वो सेमेस्टर सिस्टम एग्जामिनेशन होगा। पहले क्या होता था, हमने बच्चे को जो है मार्च से स्टार्ट कर दिया था पढ़ाना टिल दिसंबर तक। उसके बाद फिर हम मार्च में उनका एग्जाम लेते थे या फिर दिसंबर में लेते थे, एक ही सेमेस्टर होता है। लेकिन अब इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, 2 सेमेस्टर होंगे आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ए ईयर, 2 सेमेस्टर्स होंगे ताकि बच्चे को लगे कि नहीं ये 6 महीने के बाद मेरा एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए मैंने तैयारी करनी है। वरना बच्चे स्टार्ट करते थे तैयारी करना जनवरी से फरवरी में, 2 महीने पढ़े, 3 महीने पढ़े, उसके बाद एग्जाम दे दिया, हो गए पास। लेकिन अब ये सिस्टम जो है चेंज हो चुका है। ये कहती है कि अब कोई स्ट्रीम नहीं होगी। स्ट्रीम क्यों नहीं होगी? पहले क्या होता था, फिक्स होता था, नॉन मेडिकल से कुछ फिक्स्ड सब्जेक्ट्स होते थे, बच्चे को लेने पड़ते थे, उनके बाहर नहीं जाना पड़ता था। उन्हीं में से फिर चलो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल किसी ने मैथ नहीं लिया तो कुछ और लेना था, या मतलब साइंस से किसी ने कुछ और लेना था। लेकिन अब ये नहीं, नो स्ट्रीम, बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता है। जिस भी सब्जेक्ट में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है अपने मर्जी से ले सकता है। और इस पे जो है ज्यादा इम्प्रेस किया गया है, इम्प्रेस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, वन ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज जो है इस एज में अब बच्चे को पढ़ाना। उसके बाद फिर अगर हम सर हायर एजुकेशन की बात करेंगे, फिर मास्टर्स प्रोग्राम